નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, બુલેટિન ઇન્ડિયાના ટુ ધ ટોપિક કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે। જે પ્રમાણે આપ જાણો છો તે પ્રમાણે ટુ ધ ટોપિકમાં એવા સળગતા સવાલોની વાચા આપવામાં આવતી હોય છે જે સવાલો આપના દ્વારા પૂછવામાં આવતા હોય છે। જે સવાલોનો જવાબ આપ એવા વ્યક્તિઓ પાસેથી ઈચ્છતા હો છો કે જે જવાબદેહી માટે બંધાયેલા હોય છે, અધિકારી, પદાધિકારી અથવા તો પછી સંલગ્ન વ્યક્તિ આપના સળગતા સવાલોના જવાબ આપે। આજે આપણે વાત કરીશું જ્ઞાનવ્યાપી વિવાદની, કારણ કે જે પ્રમાણે જ્ઞાનવ્યાપી મસ્જિદની વાત કરવામાં આવે તો ત્રીજા દિવસે આજે શિવલિંગ મળ્યું। હર હર મહાદેવના નાદ સાથે જ્ઞાનવ્યાપી ગુંજી ઉઠ્યું। વિવાદ અત્યારે હાલ થઈ રહ્યો છે સર્વે, સંકલ્પ અને સિયાસત। જ્યારે રાજકારણનો રંગ લાગે છે ત્યારે વિવાદ થતો હોય છે ને આજે આપણે વાત કરીશું જ્ઞાનવ્યાપી વિવાદની। જ્ઞાનવ્યાપી મસ્જિદ મુદ્દે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા। હિન્દુ ધર્મે જ્યારે પોતાનો દાવો રજૂ કર્યો અને આજે જ્યારે શિવલિંગ મળ્યું ત્યારે કહેવામાં આવ્યું કે નંદીની જે ખોજ હતી તે પૂર્ણ થઈ છે। આનંદ ફાનંદમાં તરત જ કોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી અને કોર્ટ દ્વારા તે જે જગ્યા હતી તેને સીલ કરવામાં આવી। મુસ્લિમ બિરાદર જણાવી રહ્યા છે કે આ જગ્યાએ મસ્જિદ છે અને મસ્જિદ જ રહેવી જોઈએ, ત્યારે હિન્દુ પક્ષકાર કહી રહ્યા છે કે આ જગ્યાએ મંદિર છે ને 365 દિવસ મહાગૌરીની પૂજા અમને કરવાનો અધિકાર મળવો જોઈએ, કારણ કે ત્યાંથી મહાદેવ, શિવલિંગ, નંદી પ્રાપ્ત થયા છે। આ આખા મુદ્દે શું છે આખો અહેવાલ જાણીએ આ ખાસ અહેવાલમાં। મુદ્દે મોટા સમાચાર સામે ની અંદર શિવલિંગ મળી આવ્યું છે। આ વાત સામે આવ્યા બાદ વારાણસી કોર્ટે ડીએમને જ્યાંથી શિવલિંગ મળી આવ્યું છે એ જગ્યાને તાત્કાલિક સીલ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે। કોર્ટે આ અધિકારીઓને સ્થાનોની જાળવણી અને સુરક્ષાની વ્યક્તિગત જવાબદારી સોંપી છે। સર્વે માટે ટીમ ત્રીજા દિવસે જ્ઞાનવ્યાપી ગઈ હતી। કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ટીમે ત્યાં શિવલિંગ જોયું। સર્વે ટીમમાં સામેલ હિન્દુ પક્ષના વકીલ હરિશંકર જૈને તરત વારાણસી કોર્ટમાં અરજી કરી, જેમાં કોર્ટને કહેવામાં આવ્યું હતું કે શિવલિંગ ત્યાંથી મળી આવ્યું છે। આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પુરાવા છે। સીઆરપીએફ કમાન્ડન્ટને જગ્યા સીલ કરવાનો આદેશ આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી। વરિષ્ઠ ડિવિઝન જજ રવિકુમાર દિવાકરે ડીએમને તાત્કાલિક સ્થળ સીલ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે। બહાર આવીને હિન્દુ પક્ષે કહ્યું, અંદર ભોળાનાથ મળ્યા છે। વારાણસીમાં જ્ઞાનવ્યાપીના ત્રીજા દિવસના સર્વેનું કામ પૂરું થઈ ચૂક્યું છે। કાલે સિવિલ જજ સિનિયર ડિવિઝન રવિકુમાર દિવાકરની કોર્ટમાં રિપોર્ટ સોંપવામાં આવશે। સર્વે બાદ હિન્દુ પક્ષના સોહનલાલ બહાર આવ્યા તો તેમણે મોટો દાવો રજૂ કર્યો। સોહનલાલે કહ્યું, બાબા મળી ગયા, જેટલું શોધતા હતા એના કરતા વધુ બહાર આવી ગયા છે। આના પછી પશ્ચિમી દિવાલ પાસે જે 75 ફૂટ લાંબો અને 30 ફૂટ પહોળો અને 15 ફૂટ ઊંચો કાટમાળ હવે અમારો ટાર્ગેટ છે। મુસ્લિમ પક્ષ સર્વેથી સંતુષ્ટ, બીજી તરફ સર્વેથી સંતુષ્ટ મુસ્લિમ પક્ષે હિન્દુ પક્ષના દાવાઓને ફગાવી દીધા હતા। વકીલે કહ્યું હતું કે આવું કંઈ મળ્યું નથી, અમે સર્વેથી સંતુષ્ટ છીએ। આવતીકાલે એટલે કે 17મી મેના રોજ કોર્ટમાં રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવશે। એડવોકેટ કમિશનરની આગેવાનીમાં વાદી પ્રતિવાદી પક્ષમાંથી 52 લોકોની ટીમ સવારે 8 વાગે પરિસરમાં દાખલ થઈ હતી। લગભગ 10:30 વાગ્યે સર્વે સમાપ્ત થયો। હિન્દુ પક્ષના વકીલ ડોક્ટર સોહનલાલે જણાવ્યું હતું કે નંદી જેમની રાહ જોઈ રહ્યા હતા એ શિવલિંગ મળી ગયું છે। ઇતિહાસકારોએ જે લખ્યું એ સાચું હતું। બાબાને મળતા જ અંદર હર હર મહાદેવનો ઉદ્ઘોષ થયો। ડીએમ કૌશલરાજ શર્માએ કહ્યું હતું કે જો કોઈએ સર્વે વિશે કંઈ પણ કહ્યું અથવા દાવો કર્યો છે તો તે તેમનો વ્યક્તિગત અભિપ્રાય હોઈ શકે છે। કોર્ટ કમિશનર દ્વારા રિપોર્ટ રજૂ કર્યા બાદ કોર્ટ દ્વારા જ કોઈ પણ બાબત જણાવવામાં આવશે। કોઈના અંગત અભિપ્રાય કે અભિપ્રાય પર કોઈએ ધ્યાન આપવાની જરૂર નથી। મંગળવારે કોર્ટમાં રિપોર્ટ સોંપવામાં આવશે। 17મે મંગળવારે સર્વેનો રિપોર્ટ વારાણસી કોર્ટમાં સોંપવામાં આવશે। અત્યાર સુધી સર્વેમાં જે પણ કંઈ મળ્યું છે એડવોકેટ કમિશનર અજય મિશ્રાએ તેનો રિપોર્ટ બનાવશે। સર્વેમાં જે પણ વિડીયોગ્રાફી, ફોટોગ્રાફી થઈ છે એની ચીપ પરિસરની બહાર નીકળતા પહેલા જ ઓફિસરોને સોંપી દેવામાં આવતી હતી, જેથી કરીને તેના લીક થવાની સંભાવના ન થાય। જ્ઞાનવ્યાપી વિવાદ મામલે
આજે इलाहाबाद हाईकोर्टમાં सुनावणी થઈ। एक विवाद સાથે જોડાયેલી ત્રણ અરજી શામેલ છે। જો કે 6 અરજી પર सुनावणी થશે। औरंगजेब के अत्याचार उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते, औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते। मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हैदराबाद में बैठ करके बयानबाजी बंद करें, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त हैं, वो अपना सर्वे कर रहे हैं और सर्वे की रिपोर्ट वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, लेकिन कोई भी प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास ना करें। जो सर्वे की रिपोर्ट पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके जो सर्वे कमिश्नर हैं वह कोर्ट के सामने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उसके बाद ही मतलब कुछ सच सामने आएगा। और न मेरा बोलने का अधिकार है, न किसी को बोलना चाहिए। સતની જ્યારે અહીં વાત થઈ રહી છે ત્યારે જમ્મુ કાશ્મીરના પૂર્વ સીએમ મહેબૂબા મુફ્તીએ કેન્દ્ર પર નિશાન સાધ્યું। તેમણે કહ્યું કે આ લોકો હવે જ્ઞાનવ્યાપી મસ્જિદની પાછળ પડી ગયા છે। તેમણે મસ્જિદમાં જ ભગવાન મળે છે, તે અમારી મસ્જિદો છે અને તે તમામ મસ્જિદની યાદી આપી દે જેના પર તમે નજર રાખી રહ્યા છો તેવું મહેબૂબા મુફ્તીએ જણાવ્યું, જેઓ જમ્મુ કાશ્મીરના પૂર્વ સીએમ છે। તો આ જ મુદ્દે એઆઈએમઆઈએમના ચીફ અસુદ્દીન ઓવૈસી જે પ્રમાણે જણાવી રહ્યા હતા, જે નિવેદન આપે સાંભળ્યું કે જ્ઞાનવ્યાપી મસ્જિદ હતી અને કયામત સુધી રહેશે ઇન્શાઅલ્લાહ। તેમણે ટ્વિટર પર વિડીયો શેર કરીને કહ્યું કે અમે કોઈનાથી નહીં ડરીએ, ત્યાં મસ્જિદ હતી અને હંમેશા રહેશે। જે પ્રમાણે વિવાદ સામે આવ્યો છે, શૃંગાર ગૌરીની પૂજાને આરાધના કરવા માટે હિન્દુ પક્ષકારો તરફથી ડોક્ટર સોહનલાલે અરજી કરી હતી, જેમાં તેમણે જણાવ્યું કે 365 દિવસ શૃંગાર ગૌરીની તેઓને પૂજા અર્ચના કરવા દેવામાં આવે। હિન્દુ પક્ષકારો તરફથી આ વાત કહેવામાં આવી હતી કે મસ્જિદની અંદર દાખલ થઈને પછી જે પ્રમાણે સર્વે કરવાની વાત છે, તો મસ્જિદની અંદર દાખલ થવાની કોઈ જરૂરત નથી, દાખલ થવાની કોઈ જરૂર નથી। 17મી મે મંગળવારે સર્વેનો રિપોર્ટ વારાણસી કોર્ટમાં સોંપવામાં આવશે। અને આ જ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં જોડાઈ ગયા છે જગદીશ તિવારી કે જેઓ હિન્દુ અગ્રણી છે, જ્યારે સાહિલ કુરેશી જોડાઈ ગયા છે કે જેઓ મુસ્લિમ અગ્રણી છે। આ બંને મહાનુભાવોનું બુલેટિન ઇન્ડિયાના સ્ક્રીન પર સ્વાગત છે। સૌથી પ્રથમ આ બંનેને મારો કોમન ક્વેશ્ચન રહેશે કે જે પ્રમાણે આ વિવાદ સામે આવ્યો છે, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ સર્વે સંકલ્પ અને સિયાસતની, ત્યારે જ્યારે ધાર્મિક વિવાદ આકાર પામે છે ત્યારે રાજકારણનો રંગ પણ ગરમાતો હોય છે। આ બંને પાસેથી પહેલી પ્રતિક્રિયા લેવા માંગીશ। સર્વપ્રથમ આપ જગદીશજી। હનન થાય છે ત્યારે સિયાસત પણ જોતા જ રહે છે, એમનો ફાયદો કેમાં હોય છે। પણ વર્ષોથી જોવામાં આવ્યું છે કે હંમેશા હિન્દુ ધર્મને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું છે। વર્ષોથી અમારા મંદિરોને તોડીને મસ્જિદો બનાવવામાં આવે છે। આનું અમે લોકો ક્યાં સુધી સહન કરશું? લડાઈ પહેલાં તલવારથી થતી હતી, હવે કલમથી થઈ રહી છે। જી સાહિલજી, આપની પાસે આવવા માંગીશ। देखिए, ये तो बिल्कुल बात में कोई दम नहीं है कि पहले तलवार से लड़ाई होती थी। तलवार से कभी ऐसे मुझे नहीं लगता। जो मेरे भोले भाले हिंदू भाइयों को जो उकसाया गया, जो गलत इतिहास पढ़ाया गया कि हिंदुओं का यहाँ पर कत्लेआम हुआ था, ये बिल्कुल गलत बात है। कभी हिंदुओं का मैं नहीं मानता कि कत्लेआम हुआ था, क्योंकि अगर 800, 850, 900 साल अगर मुसलमान बादशाहों ने हुकूमत की और अगर उन्होंने कत्लेआम किया होता तो आप सोचिए कि एक भी मंदिर यहाँ पर बच पाता? क्या एक भी हिंदू यहाँ पर बच पाता अगर 850 साल तक कत्लेआम किया होता?
दूसरा, रही बात ज्ञानव्यापी की, अब जो ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि ये हमें सभी को पता है कि अब कोई मुद्दे तो है नहीं। बीजेपी ने आज तक राम मंदिर के नाम पर अपनी सियासी रोटियां सेकी, मेरे भोले भाले हिंदू भाइयों को उकसाया, उनका वोट पकाया और हिंदू भाइयों की वोटों की बाकायदा मॉब लिंचिंग की बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर, भगवान राम के नाम पर। अब कोई मुद्दा बचा नहीं था। अब सबको पता है कि महंगाई कहां जा रही है, पेट्रोल कहां जा रहा है, डीजल कहां जा रहा है, देश पर कितना कर्ज हो चुका है, गुजरात चुनाव सर पर है, गुजरात हर हाल में मोदी जी को जीतना है, अपना गृह राज्य है, गुजरात पर कितना कर्ज हो चुका है। गुजरात मॉडल की अब कहीं पर बात नहीं करते हैं मोदी जी, अब कभी कहीं नहीं कहते हैं कि मैं गुजरात मॉडल जैसा मॉडल देश में कहीं और लागू करूंगा, क्योंकि वो गुब्बारा फूट चुका है। तो कोई मुद्दा अब नहीं है, तो इसीलिए घूम फिर कर अब एक ही मुद्दा जो पहले था राम मंदिर का मुद्दा, राम के नाम पर वोट लिया, तो अब आगे क्या, आप किसके नाम पर वोट ले, गुजरात चुनाव में किसके नाम पर वोट मांगे, 2024 के चुनाव में किसके नाम पर वोट मांगेंगे, तो लाकर खड़ा कर दिया ज्ञानवापी का मुद्दा। दूसरा, ये मुद्दा, इसकी जरूरत क्या थी, क्यों इसको वो करने की जरूरत थी, क्योंकि वोट पकाना है। जब 1991 में पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बन गया, वो कानून क्यों बनाया गया था, उस वक्त के जो नेता थे जो सोचते थे आगे कि भाई इस देश को अमन सुख चैन से अगर रहना है तो इस तरह के आगे ऐसे विवाद पैदा ना हो, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ये वो तमाम विवाद पैदा ना हो, इसीलिए वो कानून लाया गया था। और उस वक्त बाबरी मस्जिद राम मंदिर के मामले को अलग रखा गया था और कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के अलावा जितने भी मंदिर मस्जिद जो हैं वो इस कानून के दायरे में आएंगे कि आजादी के पहले जब आजादी हमें मिली उस वक्त जो मंदिर था उसको हमेशा मंदिर माना जाएगा, जो मस्जिद थी उसको हमेशा मस्जिद माना जाएगा। तो ये तो जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये भी कहीं ना कहीं। अब दूसरा ये कि जब कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है, अचानक ही किसी ने आकर बोल दिया शिवलिंग निकला है, अचानक ही डीएम ने कहा कि वहां पर सील कर दो, कि अचानक कैसे इतनी जल्दबाजी क्यों हो गई कि अचानक उस बात को लेकर आप कोर्ट पहुंच गए। आपको इंतजार करना था, रिपोर्ट सबमिट करनी थी, उसके बाद आपको ये चीजें करनी थी। दूसरी, ये जो चीजें होती है, ये जो रिपोर्ट होती है ये काफी कॉन्फिडेंशियल होती है, ये कोर्ट के टेबल पर ही रखी जाती है। उससे पहले बाहर एक पक्ष ने आकर बोल दिया कि शिवलिंग मिला है, ये मिला है, वो मिला है, तो क्या कहीं ना कहीं देश में माहौल खराब करने की कोशिश नहीं की जा रही है? देखिए मैडम, जब बात ऐसी आती है, जब भी कोई मैच चलता है तो हर खिलाड़ी को पता होता है कि हमारी जीत होगी कि हार होगी, लेकिन कॉन्फिडेंशियल या ऑफिशियल तो अंपायर ही जाहिर करते हैं। नहीं, किसी खिलाड़ी को पता नहीं होता, खिलाड़ी भगवान नहीं होता है। दोनों पक्ष के लोग हर बैट्समैन सोचता है कि उन्होंने सोचता है कि अगले बॉल पे सिक्सर लगाऊंगा, लेकिन वो बोल्ड हो जाता है। हुआ है आखिरकार में इनका मस्जिद का मुद्दा आता है। हम इनसे भाई साहब से राहिलपुरी से पूछना चाहते हैं कि मस्जिद की जगह कैसी होती है, मस्जिद किस जगह पे बनानी चाहिए, क्या गैर कायदेसर किसी की जमीन हड़प कर कब्जा करके अगर वहां मस्जिद बना दी गई, इनके धर्म में लिखा हुआ है कि मस्जिद हलाल का होना चाहिए, अपने पैसे का बना होना चाहिए, किसी और के पैसे पे, किसी और के पैसे से बनाई हुई मस्जिद में अगर नमाज अदा की जाती है तो वर्षों से जो मौलवी लोग हमारे भाइयों को भड़का के वहां पे नमाज अदा कर रहे थे, धर्म के नाम पे खिलवाड़ कर रहे थे, उनकी नमाज बेकार गई है, उनकी पूजा पर्वण बेकार गई है। रही बात 1400 वर्ष से पहले कहीं न मस्जिद था, कुछ भी नहीं था, 5000 उस मुताबिक वहां पर मुसलमान नमाज पढ़ रहे। भाई कानून आप मानते कहां हो? इससे पहले राम मंदिर में भी कानून नहीं माने, आज भी आप लोग का देख लो, आप लोग कहते हो कि कानून है ही नहीं, हम मानते ही नहीं। अरे मानो, हम क्या करते हैं? अरे सब कानून मानते हो आप? अरे 1991 की चर्चा करते हो, 1958 में कानून बना हुआ है जो ASI ने बनाया है कि कोई भी वस्तु 100 वर्ष पुरानी होगी उसके लिए ASI का 1958 नियम बना हुआ है, 100 वर्ष पुरानी कोई भी वस्तु होगी वो अपने कब्जे में ले लेगी। जानकारी कम है, हाँ शायद आपको होगी, हमें कम तो नहीं, हमें पूरी जानकारी है। आप जो बता रहे हैं ASI का, आप जरा देख लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कि 1958 में कौन सी ASI आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अपने पास रखी है। अरे यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, आप जो कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं होती है, अरे बहन जी इससे पहले आप देखोगे मैडम, आप बीजेपी के IT सेल के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ेंगे? नहीं, हम बीजेपी और कांग्रेस को मानते ही नहीं, बिल्कुल हम हिंदू धर्म की सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। इस देश का मुसलमान कानून को मानता है, इस देश का मुसलमान संविधान को मानता है। हमारे 3000 मंदिर तोड़े गए, आप मंदिर के दरवाजे को देखो, मंदिर के दीवार को देखो तो दो जोड़ के कागज चिल्लाएगा कि पहले मंदिर ही था, ऊपर का गुंबज बना देने से मस्जिद नहीं हो जाता। आप रचना देखो, किसी कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। अगर साहिल भाई अगर एक बार जाके ज्ञानवापी के मंदिर के तरफ चारों तरफ अगर जाकर देख लेंगे कुछ ही रचना कि देख लेंगे, हाँ यहाँ पे कमल का फूल है, यहाँ पे
सांप बना हुआ है, यहाँ पे घंटी बना हुआ है। मैं इनसे पूछता हूँ क्या मस्जिदों में भी ऐसी रचना होती है क्या? उसको तोड़ दिया गया है। जो पत्थर की रचना है, हमारा मंदिर का जो निर्माण है आधा से ज्यादा पत्थर का बना हुआ है, उसको तोड़ के, और यही नहीं, इनके द्वारा लिखा गया इतिहास 1194 में मोहम्मद गौरी ने तोड़ा, 1447 में राजा जौनपुर ने तोड़ा। इसको कई बार निर्माण हुआ है, ऐसी बात में गवाह है इतिहास। अगर इतिहास को न मानो तो कोर्ट को तो मानो। आप जाकर देखो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन क्या है, हमको बहकाया जा रहा है। धर्म के नाम पे इनको बहका दिया गया कि नहीं हमारी मस्जिद है, जैसे ओवैसी जी चिल्ला रहे हैं कायम रहेगा। अरे भाई मैं पूछता हूँ, आप मस्जिद कैसे बनाते हो जरा बताओ, मस्जिद निर्माण का नियम बताओ आप कि किस जगह मंदिर मस्जिद होना चाहिए, आप एक बार बता दो। ठीक है, आप प्रमाणम की बात करते हैं, बताइए, बात बताइए आप। ईश्वरम निरंकारम निरंजनम क्या मतलब होता है? जी बिल्कुल, ईश्वर का कोई आकार नहीं हमारी होता, श्रद्धा ईश्वर है, का कभी जन्म नहीं ये होता। बात बिल्कुल, अरे नहीं, तो नहीं ऐसे नहीं, देखिए यही मतलब, ऐसे आप कहेंगे, बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, बोल लीजिए। अब आप बात कर रहे हैं मस्जिद की। आपने कहा कि इस देश का मुसलमान कानून को नहीं मानता। इस देश के मुसलमान ने जब बाबरी मस्जिद पर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, दिल दुखा हर मुसलमान का, लेकिन हमने कोर्ट के फैसले को माना है ना, उस पर हमने हंगामा नहीं किया, कोर्ट का फैसला है। इसी तरीके से आप जो कह रहे हैं कि मस्जिद कहां होती है, नमाज कहां होती है, इस देश का कानून ने यह कहा 1991 में जो बातें सामने आई कि जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। मुसलमानों ने कानून को माना। साहिल भाई, अब ये बोलने मंदिर दीजिए, ये बनाने की आवश्यकता ही कहाँ थी? अरे क्यों ऐसा कहा गया जो कब्जा किया हुआ उसको छोड़ दिया जाए? अरे गुजरात के अंदर आपके 1 लाख मंदिर, आपके 1 लाख मंदिर गुजरात में सड़क पर बना के जाते हैं। सरकारें जो यहाँ की पहले की सरकारें थी, जानबूझ के तुष्टीकरण करने के लिए ये नियम क्यों लाए भाई? मेरे भाई आपका तुष्टीकरण, अरे भाई ये क्या है बीजेपी, जिसका कब्जा जिसकी लाठी उसकी हिंदू भाइयों का ऐसा तो तुष्टीकरण कभी कर रही है संभव हो ही नहीं बीजेपी। सकता। 400 रुपए का सिलेंडर हम लोग यहाँ हैं, हम लोग अपनी ताकत पे रहते हैं, किसी हिंदू राष्ट्र के नाम पर आपको 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए में दिया जा रहा है। अब बात करें, अरे भाई महंगाई मुद्दा एक अलग है, आज ज्ञानवापी मंदिर के बारे में चर्चा करिए। महंगाई, बेरोजगारी की 70 सालों से चले हमारे, उस पर हम चर्चा करने के तैयार हैं। आप किसी को बुला लो। 1000 मंदिर मस्जिद पर बना दिए गए इनलीगल तरीके से। पहले 2 ईंट रखी गई, वहां पर तस्वीर रखी गई, वहां कुमकुम डाला गया, 5 साल के बाद वहां पर बड़ा मंदिर बन गया। बोलेंगे आप उस पर कुछ? विश्व में गवाह है, कहीं भी धार्मिक भावनाओं ने आहत नहीं करी, कहीं भी मंदिर का निर्माण गैर कायदेसर कब्जा करके हुआ ही नहीं है। आप एक उदाहरण बता दें कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाओ। अरे आप यही बताइए ना, आप मैं बताइए। 15 साल पहले सिर्फ एक सड़क था, वहां पर कुछ भी नहीं था, वहां पर 2 ईंटें रखी गई, वहां पर पूजा शुरू की गई, 10 साल बाद वहां पर मंदिर बना दिया गया। ऐसे एक नहीं, आपको अहमदाबाद के अंदर किसी की जमीन रही होगी, मंदिर बन गया, अपनी जगह पे बनाया। आप जैसा नहीं किसी के मंदिर को तोड़ दिया जाए, किसी को मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बना दिया गया। बाबरी मस्जिद कहीं भी नहीं हुआ ऐसा, कभी भी हिंदू ऐसा कर ही नहीं सकता। बावजूद कोर्ट, चलिए मानिए, चलिए जो भी हुआ था, लेकिन जब मस्जिद को शहीद किया गया, मस्जिद को शहीद करने वालों को कोई सजा नहीं, मस्जिद किसे कहते हैं? कोई सजा नहीं हुई। ढांचा है क्या, कैसे हम यकीन करें? आप सोचिए, कोर्ट में और इतनी क्या जल्दी थी आपको शिवलिंग बताने की वहां पर? क्या आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है? अरे भाई शिवलिंग से, अरे भाई हमारे बाबा तो शिवलिंग को इतने वर्षों से आप लोग तालाब में छुपा के रखे, जो हमारे लिए जहां वजू करके उसको शुद्ध करने का प्रयास करें। સાહેલ જી, જગદીશ જી, જ્યારે આપણે ડિબેટ કરતા હોઈએ, ડિબેટનું ડેકોરમ છે તે જળવાઈ રહે તેનું પણ આપણે ધ્યાન રાખીશું। તદુપરાંત આપણે કોઈની પણ ધાર્મિક ભાવનાઓ आहत ના થાય તેનું પણ ધ્યાન રાખીશું। આપણે વાત કરતા હતા જ્ઞાનવાપી વિવાદની, આપણે વાત કરતા હતા મંદિર કે મસ્જિદની, જે પ્રમાણે એક પછી એક નરેન્દ્ર મોદી હોય કે પછી असदुद्दीन ओवैसी હોય, महबूबा मुफ्ती હોય કે પછી ઘણા બધા રાજકીય નેતાઓ હોય કે જેમણે જ્ઞાનવાપી વિવાદને લઈને પોતાનું નિવેદન તો આપ્યું છે। મારી સાથે જોડાયેલા છે જગદીશ તિવારીજી અને સાહિલ કુરેશીજી। જે પ્રમાણે વાત થઈ રહી છે, પહેલા દિવસે તમામ 4 ભહેરાને ખોલવામાં આવ્યા અને ત્યાર પછી બીજા દિવસે ગુંબજ, નમાઝ સ્થળ અને વજુ સ્થળનો સર્વે કરવામાં આવ્યો અને ત્રીજો દિવસ હતો જ્યારે સર્પ, કળશ, ઘંટ, સ્વસ્તિક, શ્વાન મળવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે અને શિવલિંગ મળ્યા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે। હર હર મહાદેવથી આજે જ્ઞાનવ્યાપી જે છે તે ગુંજી ઉઠ્યો હતો। જગદીશજી, આપની પાસે આવવા માંગુ છું, કારણ કે જે પ્રમાણે असदुद्दीन ओवैसी फरी एकवार कट्टरताનું ઝેર ઓક્યું છે। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, उनकी दुकान बंद हो गई थी। अचानक मुस्लिम समाज और धर्म, इस्लाम धर्म का मसीहा बनकर बाहर आने का प्रयास हो रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है। उनको एक बात तो कह देना पड़ेगा मैडम कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।
इससे पहले हैदराबाद में वो क्या करते हैं, जहाँ भी जाते हैं इस्लाम धर्म की बात करते हैं, मुसलमानों को उकसाते हैं, उनके धर्म की बात करते हैं, बाहर आओ आप लोग खतरे में हो। जबकि वर्षों से राज इन लोग का रहा, तब भी ये खतरे में नहीं थे, और आज अभी 2014 से इनको खतरा ज्यादा दिख रहा है। मैं कहता हूँ इससे पहले जो 70 साल तक राज किए, आप देखिए कितने दंगे हुए, इतने दंगे होते थे। अहमदाबाद हमारे मित्र बैठे हुए, उनसे पूछा जाए साहिल भाई से कि अहमदाबाद में कितने दंगे होते थे, क्यों होते थे? हर विस्तार में अलग अलग प्रकार के दादा पैदा हुआ करते थे, ये उनका विस्तार, वो उनका विस्तार। लेकिन जब से ये सरकार आई, इसकी नीयत देखा जाए, ये सब, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन महसूस कर रहा हूं आज हर व्यक्ति सुखी है, संपन्न है। अरे क्या बात कर रहे हैं, सुखी संपन्न लोग मर रहे हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्या गुजरात में हो रही है, लोगों के पास अपना लोन का पैसा देने के लिए पैसा नहीं, आपके लिए सुखी संपन्न है, कहां से सुखी संपन्न है? और दूसरी बात मोहतरमा, मैं आपसे भी कहूंगा, कोर्ट पर भरोसा रखो જોઈએ ने। मोहतरमा, मैं आपसे भी कहूंगा, आप जो कह रहे हैं कि ओवैसी ने जहर रोका, कौन सा जहर रोका बताइए? ओवैसी आज ही कहे इंशाअल्लाह मस्जिद कायम कयामत तक सलामत रहेगी। मैं भी कहता हूँ मस्जिद कयामत तक हम मानते हैं, मस्जिद कैसी, मैं भी कह रहा हूँ जगह से कयामत तक कब्जा किया गया हो, वो मस्जिद तो माने ही नहीं। अरे आपके कुरान में लिखा हुआ है मित्र, आप पढ़िए, क्या वो मस्जिद है? अरे नहीं हो मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं भी कह रहा हूँ कि मेरा ये कि ऐसी जगह ये बिलीफ है कि मैं मानता हूँ मस्जिद थी और लेकिन मौलवी जो दाढ़ी लोग बढ़ा के चले आते क्या बात है, ये हमारी बताइए। मस्जिद है, वास्तव में मस्जिद का हम भी सम्मान करते हैं, इस्लाम का सम्मान हम भी करते हैं। हिंदू હોય, મુસ્લિમ હોય, શીખ હોય કે ઈસાઈ હોય, આ ચાર સ્તંભમાંથી એક સ્તંભ પણ થોડોક પણ આડોઅવળો થાય ને તો ભારત દેશ ડગમગી જાય। પરંતુ જ્યારે આ ચાર એક સાથે ઊભા હોય ને તો કોઈની તાકાત નથી કે ભારત દેશની સામે આંગળી ઊંચી કરીને અથવા તો પછી આંખ ઊંચી કરીને જોઈ શકે। મારો ભારત દેશ બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે, એ હિન્દુનો પણ છે, એ अरे મુસ્લિમનો हमारा પણ देश છે। बिन सांप्रदायिक था, ये मोदी जी और ये बीजेपी ने आगे बीने को कबाड़ा कर दिया हमारे मुस्लिम देश ने में। खतरों को सुनिए रखा आप, है। जब शायद प्रधानमंत्री मुस्लिम ने खड़ा खतरों होकर को मस्जिद रखी में है। कहता है औरंगजेब कौन ये था, खतरों औरंगजेब वो था, प्रधानमंत्री खुद वहां से जेर अरे बोलने भाई, का काम औरंगजेब करते हैं। इतना अरे बड़ा ओवैसी की बात क्या क्या औरंगजेब है? आप नरेंद्र मोदी हिंदू हिंदू सारे भारत का इतिहास नहीं में कहेंगे। विदेश से आया नरेंद्र आतंकवादी मोदी है, हिंदू हिंदू करेगा तो आपको अच्छा लगता है। औरंगजेब से ओवैसी प्रेम क्यों? मुसलमान बाबर कहता से है तो इतना प्रेम परेशानी क्यों? हो जाती आप है। अपने भारतीय ओवैसी मुसलमानों दलितों से की प्रेम बात करो, करता है, भारतीय ओवैसी मुसलमान से बात करो ना, आपको लेकिन क्या तुम बाहरी परेशानी है विदेशियों की उससे? बात करते हो। औरंगजेब है कौन? ओवैसी वो नहीं बाहर तो से आया मोदी हुआ अगर है, बात हमको करता लूटने है। आया, हमारे अरे भारत देश को लूटा, वो हमारा तो है ही नहीं, आप हमारे हो, हम अरे आपके साथ कुछ रह सकते, किसी हम ने आपको नहीं तकलीफ लूटा, नहीं देना सब यहीं पर चाहते। छोड़ कर औरंगजेब गए, देखिए, उसी का खा रहे अरे हो आज भाई, यहाँ पर। औरंगजेब के उसी बारे का में पूरा औरंगजेब का इतिहास बसाया पढ़ा हुआ हुआ है, चीजों का कत्लेआम कर दिया गया। क्या है आपके पास से? एक औरंगजेब बार ने यहाँ पर बताया एक हाथ में सब कुछ, तलवार, एक हाथ में औरंगजेब कुरान, यहाँ पर सब कुछ क्या छोड़ होगा? कर गया, इस तरह लेकर से कुछ नहीं उन्होंने गया यहाँ से। धर्मांतरण करवाया। जब मोदी अरे यहाँ पर हमारी हिंदू किताबों हिंदू में हमारे करते इतिहास हैं, जो पढ़ाया गया है, मोदी यहाँ पर अब हिंदू अब हिंदू क्या करते हैं, है? आपको मजा स्प्रिंग आता जो है। कभी हुई थी वो अरे छूट मोदी गई है। हिंदू हिंदू की बात स्प्रिंग करें, अब आपको बड़े मजा स्पीड से आएगा। बाहर निकल रही है। इन लोगों को तकलीफ हो रहा है कि ये धार्मिक बात कहां से आ गई। धार्मिक नहीं, हम ही सही सुना है, हम सही अरे आप सुना है, कितने हम सही आपको शुरू रखे दिख रहा हुए हैं। नजर आ रहा है। अरे राम राम बोलो वरना मार अरे दिया भाई, जाएगा। आपकी बात इतने आप सही कितने शुरू सही हो, सही कहीं हो पर है, बटन देखकर उसका आपने मार उदाहरण दिया, मस्जिदों में नाम बंद पूछकर विस्फोट आपने होता मार है। दिया, दाढ़ी को आपने भी कभी देखकर सुना आपने मार मस्जिद दिया। में ये सही विस्फोट सुनता है भारत आपकी। में नहीं। इस्लाम जहां है, आपका अफगानिस्तान की बात हो, शिया सुन्नी, कितनी लड़ाई, पूरा विश्व परेशान है। अरे और छोड़िए हमारे- अपना आइए शांति, भारत की बात हमारे करिए वहाँ ना। सनातन धर्म में आप आइए। झूठ फैलाते हैं अरे कि झूठ दंगे नहीं क्यों? होते। जम्मू कश्मीर उत्तर एक प्रदेश उदाहरण। के अंदर 2 कश्मीर साल के फाइल अंदर नहीं, 1000 थोड़ी दंगे सी बात हुए। लिखी थी, लोग योगी बौखला सरकार गए। के अंदर, भाजपा की सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में 1800 दंगे हुए। क्या बात करते हैं आप? दंगे नहीं कोई होते। दंगा नहीं अरे हुआ। पापा, एक अरे बात सरकार की रिपोर्ट बिल्कुल नहीं, है, रिपोर्ट मोदी की बात- सरकार की आप अरे रिपोर्ट भाई, लेकर हम आप देखिए। लड़ ले में। 1000 से ज्यादा अभी- दंगे हुए उत्तर प्रदेश अभी के हम आप अंदर। लड़ क्या ले, बात दंगा करते थोड़ी हैं हो आप? जाता है। हिम्मतनगर में क्या हुआ दंगा आपने लड़ाई नहीं होती देखा। रहती है। खंभात इसको में दंगा दंगा नहीं हुआ आपने कहते। नहीं देखा। दंगे की आप परिभाषा बकवास आप की बात सुनो। करते हैं कि दंगे दंगे नहीं की हुए। परिभाषा 1969 में हुई थी, जहां लाखों लोगों को काट दिया गया था, उसे दंगा कहते हैं। एक व्यक्ति जगदीश तिवारी या साहिल कुरैशी ले ले, वो दंगा नहीं कहा जाएगा। अच्छा, यानी ये इतने व्यक्तिगत मुसलमानों लड़ाई के है। मकान ये जला हमारा दिए जाए, वो व्यक्तिगत दंगा लड़ाई नहीं आप है। मानते उसको। ये यानी व्यक्तिगत लड़ाई आपकी है हमारी। पार्टी खून की प्यासी है, लाख लोग मरेंगे तब आप मानेंगे दंगा हुआ। दंगा नहीं, 2-3 दंगा की मुसलमान परिभाषा मर आप जाएंगे, देखिए। 2-3 मेरे हिंदू भाई मरेंगे, उसको आप लोग दंगा नहीं मानेंगे। आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू भाई मरे, ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाई मरे, ये चाहते हैं आप।
दंगा दंगा होता है, किसी एक हिंदू का या किसी एक मुसलमान का अगर जरा सा मकान भी चलता है उस पर थोड़ी सी खरोच भी आती है, बिल्कुल मेरा दिल दुखेगा, चाहे मेरा हिंदू भाई के साथ में हो। आप कहते हैं दंगे में ज्यादा लोग भाई से क्या बात करते हैं आप? 3.5 लाख कश्मीरों का पंडितों का मकान आपकी सरकार ने 8 साल से क्या उखाड़ लिया आपने? आपका दुख बचाना कहां आपने है? एक भी आपका कश्मीरी दिन पंडित को कहां क्या नहीं था? क्या किया 8 साल में आपने? आज भी कबर 8 हमें साल दुख में है, क्या किया तब आपको आपने? याद नहीं आया। एक भी कश्मीरी पंडित को ले जाकर बसाया अरे आपने? आज भी 1500 करते हैं आप पंडित लोग, रह रहे कुछ हैं काम वहाँ नहीं पे। करते हैं आप। और आप देश लोग के गिन हिंदुओं के को मार उल्लू रहे हो बना कि रहे हो आप लोग। कौन पंडित आप रहने कहते हैं आया? हिंदू अकेले संगठनों गोलियों की जाके मार सरकार, दे रहे हो। देश के एक आते हैं हम देश के हिंदू युवाओं को ये तमाम लोग जो है ना उल्लू बना रहे हैं। आप 8 साल तक आपकी सरकार रही, क्या तोड़ लिया आपने? कश्मीरी पंडितों को जाकर बसाया आपने, फिल्म बनाकर आपने लोगों को उकसाया, भाषणबाजी करके आपने लोगों को उकसाया, हिंदू भाइयों को आपने उकसाया। वहाँ के हिंदू भाई वहाँ के कश्मीरी पंडित परेशान होकर बोल रहे हैं कि सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी नहीं किया, लफाजी की है, अरे भाई ये वही देश था और कुछ भी नहीं किया जहां 2 आपने। संविधान 8 चलता साल में था। बसाया आज आपने। एक संविधान हो गया, आज 1500 कश्मीरी पंडित रहने चले गए। उसके अरे बाद भी बकवास क्या की हुआ? बात करे, कौन उसके रहने बाद क्या गया? हुआ? कोई कश्मीरी कश्मीरी पंडितों पंडित को बोल आपने के नहीं मारी बसाया गोली है क्यों वहाँ मार पर? दिया गया? बकवास की आना बात चाहिए कर आपको रहे हैं। बाहर। 8 साल में आना आपने चाहिए, कोई क्यों मार कश्मीरी दिया पंडित गया को भाई? बसाया नहीं है वहाँ पर 1500 जाकर। कश्मीरी उल्लू पंडित बनाते हैं रहने आप। चले गए, अलग से और कश्मीर की बात छोड़िए, गुजरात की बात करता हूं। गुलमर्ग सोसाइटी का मुसलमान आज भी अपनी सोसाइटी में रहने नहीं जा पाया है। उसके क्या कर पीछे रही है कारण है, आपकी उसके सरकार? पे राज क्या कर बात आप लोग करते हैं जवाबदार हो। आपका? आप लोग करिए ना पैसा आपकी इकट्ठा सरकार। कर लियो, करोड़ों आपकी रुपए सरकार दीजिए गुलबर्ग ना, जाइए, में बसाइए गुलबर्ग ना के वहाँ जमीन पर। है, आप उनसे कश्मीर खरीद की लिया बात गया करते हो, है। गुजरात की जो बात करिए गुलबर्ग ना। में रहने वाले मुसलमान भाई थे, उनकी जमीनें आप लोग खरीद लिए हो। उनको पैसा देंगे। ऐसे कैसे भूल जाए? नहीं भूलेगा देश का मुसलमान कभी भी उस चीज वो को। नहीं भूलेंगे नहीं कभी। भूलेगा, नहीं, आपने लेकिन शांति ने हिंदुओं के धर्म अत्याचार हुआ संसद में तो खड़े जरूर होकर भूल कहा जाएंगे। जाता है। अगर अगर हिंदुओं भूल का गए क्या? अत्याचार हुआ तो जरूर भूल जाएंगे। तोगड़िया जी खड़े होकर बोलते हैं, चलेगा। तोगड़िया जी खड़े होकर बोलते हैं गुजरात भूल गए क्या? वो खुद हमको चाहते हैं कि हम गुजरात याद रखें। गुजरात तो और मैं सिर्फ गुजरात मुसलमानों के कत्ल के लिए याद नहीं रखता हूँ, मेरे हिंदू भाइयों को भी गुजरात के 2002 के दंगों में जो परेशानी हुई उसके लिए हम याद करते हैं गुजरात दंगों को। मुसलमानों को मारा गया, हिंदू भाइयों को मारा गया, इसके लिए हम याद करते हैं गुजरात दंगों को। ऐसी सरकारों को उखाड़ कर फेंक दिया जाना चाहिए जो हिंदुस्तान को तबाहती है। गोधरा कांड किसने करवाया? क्यों उनको हिंदुओं को जला के मार दिया गया? मारने वाले कौन पकड़ाए? कौन से धर्म किस धर्म से लोग थे? इतने लोगों को पकड़ जिंदा जला दिया गया। मरने वाले कौन थे? मरने वाले कौन हिंदू थे? जल गए, अपने छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया गया। और उनको शर्म आनी चाहिए। हमें अत्याचार हो रहा है, अत्याचार तुमने शुरू किया। पूरे गोधरा ट्रेन के S6 को जला दिया, छोटे छोटे बच्चे जल के मर गए, और ऊपर से कौन पकड़े गए? क्या सभी एक समाज के पकड़े गए। क्या सरकार सजा मिली उनको? क्या हुआ उसका? अरे भाई आप लोग शादी पीट रहे थे, रथ में वो शब रथ कर किसने आप घुमाए लोग थे? कर रहे कौन थे, था पकड़ो मत, मुख्यमंत्री? पकड़ो मत, किसने पकड़ो देश मत। के हिंदू क्यों ना भाइयों पकड़े को भाई? उकसाया पकड़ के कि सरकार रथ में को घुमा अंदर कर कर उन दिया। शवों को घुमाया जाए, हिंदू भाइयों को देखिए, उकसाया जाए, किसने किया था ये काम? આપણે જે મુદ્દો છે તેનાથી વિષયાંતર કરી ગયા છે. આપણે જે વાત કરી રહ્યા છે એક જ્ઞાનવ્યાપી મસ્જિદ કે મંદિરની આપણે વાત કરી રહ્યા છે, તેના વિવાદની વાત કરી રહ્યા છે. देखिए मैं चाहता हूं, ठीक है आप बोलते हैं ना हिंदू राष्ट्र आए, ठीक है हिंदू राष्ट्र लाइए आप, और मैं एक मुसलमान हूं, ये मेरा बिलीफ है, मैं मानता हूं कि इस्लाम की हुकूमत होगी। मैं साफ कहता हूं ये चैनल पर, मुझे कहने में कोई वो नहीं है। आप बनाइए, आप 1 करोड़ के, आप 1000 करोड़ के खर्चा करके आप राम मंदिर बनाइए, आप जो करना आपको बनाइए ना। मेरा बिलीफ है, मैं छाती ठोक कर ही कहता हूं कि मेरा बिलीफ है, मेरा धर्म ये बिलीफ मुझे कहता है कि हमें ये तमाम जो आप मंदिर बनाएंगे ना, एक न एक दिन हमें वो मस्जिद के रूप में वापस मिलेंगे। मैं साफ कहता हूं ये बात, एक गलत बात है, आज भी धमकी दे रहे, ये औरंगजेब की तरफ से धमकी दे रहे हैं। जो मंदिर आप बनाओगे फिर तोड़ के हमारे पास आ जाएगा। इनको ये आतंकवादियों का नया चारा है। ये क्या कह रहे हैं? जो मंदिर आप बनाए, विश्वास करते हैं इनको मिलेगा, विश्वास तोड़ के रखेंगे। इनके हाथ हमारे मंदिरों के जो भी हाथ किसी का खून नहीं रहेगा, तोड़ के कानून हाथ में नहीं लिया जाएगा। अरे आप लोगे, कानून हाथ में नहीं लेगा देश का कोई पाकिस्तान, मुसलमान, अफगानिस्तान, किसी का खून नहीं ईरान, रहेगा। सीरिया देखा गया है, खून की नदियां बहाए हो आप लोग। शांति आपके धर्म में है ही नहीं। अरे शांति क्या बात होती करते तो आज हैं आप? शिया मुसलमान नहीं लड़ता। अरे आज किसने बच्चों को गोली मार दिया गया। अरे भाई बाबरी इससे मस्जिद को पहले शहीद करता कोई पूरी दुनिया ने देखा था। आज किस तरीके से नहीं रात करता, को बम मार के किस तरीके से चोरी छुपे तरीके से अरे विचार 1948 करिए, के ये कौन से अंदर लोग हैं जो खुद के शरीर पे बम उड़ा दे रहे हैं, दूसरों को मार दे रहे हैं। 1948 टेक्नोलॉजी कहां से पढ़ के लाए? ये वही करते हैं। काफिर शब्द बोलते हैं, ये काफिर शब्द कौन है? काफिर का मतलब विचार पता नहीं करिए, है आपको। ये जो इसका मतलब जिनका इनके अल्लाह को नाम હોય તેને યાદ રાખીએ છીએ.
आपको इस्लाम का ज्ञान नहीं अरे है, खूब काफिर का ज्ञान, आप मतलब बताओ आपको ना, नहीं पता। क्या होता है बताइए। आपको काफिर का अरे मतलब आप नहीं बताइए पता। ना, काफिर क्या जो होता झूठ है? को नहीं किस मानता चीज वो को काफिर होता अरे है। कुछ नहीं, मुसलमानों को भी कहा जाता है तुम्हारे काफिर। कुरान में लिखा हुआ है, जो झूठ कुरान पर गूगल पर्दा करके डालेगा देखो। वो काफिर होता है। अगर मुसलमान भी है वो अगर सच्चाई को गलत छुपा रहा है तो उसको काफिर कहा जाता है। अरे तो हिंदू करना चाहिए भाइयों, ना, आज जागो, गलत ही आप भी बोल ये रहे हो, ऐसे हिंदू आप संगठन भी आपको गलत उल्लू कह रहे बना हो। हैं। क्या कह रहे हो? हिंदू को जो भी काफिर मंदिर नहीं कहा बनाओ, जाता। उस मंदिर को हिंदू वापस को ले काफिर लेंगे। नहीं कहा जाता, ये आपको उल्लू बनाते हैं। किस तरह से? पढ़िए आप, हिंदू भाइयों को पढ़ना चाहिए पहले कि इस्लाम क्या कहता है और क्या है इस्लाम काफिर जो शब्द। कहता है आप उसमें उल्लू आप बनाते चलते हैं कहाँ हो? आपको। इस्लाम आप लोग को उल्लू गैर बनाते कायदे हैं। में गैर आप लोग काब उल्लू बहकाने बनाते में हैं। आ गए हो। आपको नहीं पता आप सब काफिर का बहके हुए मतलब। लोग हो, अगर इस्लाम आप मानते बहका रहे हो मेरे हिंदू इस्लाम, भाइयों को बहका रहे हो। अरे आप लोगों कोई को पता बहका नहीं, नहीं आप लोग आपको। बहके हुए लोग उसको समझो, कुरान आप क्या लोगों कह को रहा कुछ है, पता अब ही उसको नहीं है। व्यवस्थित करो। क्या हाँ, कह रहा है कुरान अरे बताइए भाई आप। यही कह रहा है। आपकी गीता क्या कह रही है? अरे आपके वेद गीता क्या कह रहे हैं वो भी देखो, बताइए ना। देखो गीता तो आपके सब वेदों के अंदर ला इलाहा गीता तो इल्लल्लाह का हमेशा जिक्र आया शांति है। का पैगाम ही दिया है, लेकिन आपको वहाँ कहा गया है आपके- कि अल्लाह के सिवाय સાહેબ कोई જી, नहीं है। જગદીશ જી, ગીતા ને બિલકુલ કુરાનમાં કहा એક ગया। જ પેગામ हमारे क्या આપવામાં આવે છે, बहुत એક જ जान वो સંદેશ लोग नहीं આપવામાં है, આવે वो છે કે देवाली શાંતિ राम સ્થપાય। राम हो, बुद्ध हो, जैन है, वो भगवान शांति नहीं है। સ્થપાય। क्यों नहीं हम कहा, क्यों मानते हैं, नहीं मैंने मान्यता कहा। देते? आप लोग अरे मान्यता देते ही नहीं। एक अरे को हम आपका द्वितीय belief नास्ती, आपके साथ है, आप इसी किसी कारण को भी मानिए, आज मुझे क्या आज उससे पूरा मतलब है? विश्व इस इस्लाम से परेशान है। आप चाहे जहाँ देखो आतंकवाद किसका है, अरे सिर्फ बस हिंदू यही है, संगठन परेशान इसके है, सिवा और और कोई परेशान नहीं नहीं है। पूरा विश्व। जिनको अमेरिका रोटी सेकनी इतना है ना बड़ा सियासी, वो अर्थतंत्र है, वो परेशान है, और देखो कोई परेशान क्या नहीं हुआ, है। अमेरिका की हालत देखो। જગદીશજી આતંકવાદનો શ્રીલંકા કોઈ की ધર્મ हालत નથી देखो, હોતો, ના हिंदू હિન્દુ तो હોય कहते છે हो કે ના श्रीलंका મુસ્લિમ का હોય क्या છે। हाल हो गया આતંકવાદનો आप કોઈ देखिए। ધર્મ નથી હોતો, આતંકવાદનો કોઈ ધર્મ નથી હોતો। ये बात એનો तुम्हारी ધર્મ साची ફક્ત है। એક જ હોય एक છે के धर्म કે में ऊपर જે जितना માનવ જાત હોય आतंकवादियों એને पकड़ा नुकसान बताइए, પહોંચાડવું। बड़ा અને જ્યારે मुसलमान ગુજરાતની को વાત આવે सबसे છે ત્યારે बड़ा ગુજરાતની आतंक જાતિને ये વિશે है, જ્યારે સમગ્ર कोई દેશમાં मुसलमान વસાય છે की ત્યારે આ પ્રકારે આપણે જાતિને આપણે કરીશું। आरोप तो मेरे खोटा है, तुम्हारी सरकार खोटा आरोप लगाई। एक क्या નથી, એક આરોપ સિદ્ધ નથી થયો। અહીંયા તો કેટલા લોકોને फांसी દઈ ગઈ છે। એ કેટલા લોકોને फांसी તમે ખોટા પૂર્યા દીધા ગયા। ભગવાન અરે ભાઈ 15 दिन એના के अंदर ભોગ कई हिंदू युवा पकड़े ये गए। તમે લોકો જે કર્યું એ ભોગી રહ્યા છો અત્યારે। તમારા લોકોને વનવાસ થઈ ગયું છે એટલા માટે આ દેશમાં આ જે પાર્ટીઓ હતી ને ભગવા આતંકવાદ કહેતા એનો વનવાસ થઈ ગયો એટલા માટે किसी તમે पार्टी से ખોટા मतलब આરોપ नहीं લગાડ્યા है। છો, हमें किसी ખોટા आरोप पार्टी से लगाड़્યા છો मतलब नहीं તમે। है। और कोई माइका लाल नहीं है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि मुसलमान का वनवास करवा दे। यहाँ से सुन लीजिए आप, किसी पार्टी से પણ मुझे मतलब સાહેલજી, नहीं है। જેટલો मेरा દેશ belief મુસ્લિમનો मेरे છે साथ है। તેટલો आप હિન્દુનો जिस પણ भगवान છે। को भाई આ आप બંનેનો वही हैं, आप આ जो બંનેનો मानने वाले દેश हैं, आपका છે। विश्वास वही है। मुझे आज मुस्लिम हम नहीं भी कह रहे कहते, हैं कोई ये नहीं बदमाश कहेंगे नहीं कि है, सब मुझे फर्क नहीं है। शांति से रहे, एक नहीं कहेंगे। मुझे हम तो फर्क नहीं कहते हैं कि पड़ता हिंदू आपसे। मुसलमान आप कोई भी सिख मजहब ईसाई मानिए, सब मुझे शांति फर्क से नहीं रहे, पड़ता। लेकिन ये कहेंगे नहीं हमारे विश्वास है, हम जो भी मंदिर बनाओगे हम फिर तोड़ के ले लेंगे। अब विचार मैंने करिए, तोड़ने ये की बात इनका नहीं विचार कही। देखिए एक कैसे बात वापस आ बताइए, जाएगा, मैंने तोड़ने की बात कब कैसे कही? आएगा हिंद। अरे गजवा आप हिंद की खुद बात कहेंगे, करते हो आप आप, खुद कलमा गजवा पढ़ हिंद के की आ बात जाइए, कर रहे हो, देखिए। आप गजवा खुद हिंद एक दिन करके कलमा बात पढ़ेंगे। करते हो, किसको हम गजवा हिंद बनाएंगे, आप खुद ये एक कभी दिन नहीं कलमा होगा, पढ़ेंगे प्यार कभी से। कभी नहीं उस होगा। मंदिर मित्र के अंदर आप सूरती नमाज आप पढ़ेंगे, मर जाओगे तब तक आपके कभी कोई पूर्वज नमाज कोई पढ़े, पढ़ेंगे। कोई नहीं, बिना तलवार की कोई नमाज पढ़ने पढ़ेंगे, वाला बाकी नहीं है। देखिएगा। ये और आपकी मोहब्बत से होगा ये सारा, कभी नहीं तलवार हो पाएगा, एक चलेगी, बात बता दूं। खून नहीं आप जो बहेगा। सोच रहे ये हो, मेरा वो कभी belief है। संभव नहीं हो सकता। ये मेरा बिलीफ है, ये आपका नहीं है। आपका बिलीफ है आपका कल्याण बिलीफ करना, गंदा है, मस्जिदें गलत तोड़ सोच देना। विचार कर मेरा रखे बिलीफ करके नहीं रखे है। हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं मंदिर तोड़ेंगे मुसलमान, नहीं अरे तोड़ेंगे आप कभी कहा तो मुसलमान। रहे मंदिर तोड़ के हम वापस ले लेंगे, मैंने बना तोड़ के के रखो, कहा, जिस मैं आपको तरह भी चैलेंज करो। करता हूं, इस डिबेट को आप रिमाइंड देख करके लीजिए, दिखाइए। देखिए मंदिर वापस रिमाइंड आएगा। दिखाइए, मैंने अरे कभी देख नहीं लीजिए, कहा। इस पे चैलेंज मैंने है, तोड़ कर आप नहीं देखिए कहा। इनका इनका जुबान साइड दिखाइए, रिमाइंड ये करके कह रहे बताइए। हैं कि तोड़ मंदिर को कर वापस नहीं ले कहा लेंगे, मैंने। कैसे झूठ वापस बोल रहे हैं आप। क्या आप हिंदू कितना बन सच्चे जाएंगे, झूठ बोलते क्या आप हैं। धर्मांतरण करेंगे, जो भी तब दर्शक ये देख रहे हैं कैसे उनसे मंदिर उन्हें में पता आएंगे। चलेगा। इस आप डिबेट को हिंदू देखिए, मैंने कहीं अगर मंदिर तोड़ने की बात कही अरे है, आप मंदिर तो कैसे बताइए, वापस ले लेंगे, आपके ये ये हिंदू बताइए, नेता जिस झूठ तरह रहे कह रहे हो कि आप हैं, हिंदू झूठ फैला रहे हैं ये, कैसे कह रहे झूठ हो मंदिर बोलते हैं वापस ये। ले लेंगे, मैंने कैसे तोड़ने ले को लोगे, नहीं कहा, कैसे तोड़ने वापस को लोगे, नहीं क्या कहा। धर्मांतरण प्यार करोगे, से, आप मोहब्बत से धर्मांतरण होगा। करके वापस अरे हम लोगे, नहीं करेंगे, तो आप कैसे खुद मंदिर में कलमा आओगे, पढ़ेंगे। तो हम आओ, नहीं करेंगे आपका कलमा। स्वागत है, आप आप खुद धर्मांतरण पढ़ेंगे। करें, हम आपका स्वागत करते हैं, आप खुद
खुद मंदिर में आपको कलमा प्रवेश पढ़ेंगे, करवाएंगे, आप लेकिन खुद- आपका विश्वास ये आप गलत खुद है कि छाती आपको ठोक मंदिर कर आपको वापस मिल कहेंगे, जाएगा। आप कहने खुद की बात छाती अलग ठोक है, कर तुम कहेंगे कहोगे कि गलत पालन आने कहोगे, के। इसी तरह बहका के पूरे धर्म आप को बहका रहे गलत हैं। रास्ते पे लेकर चले गए हो। देखिए, सुनिए, समझ लीजिए, आप एक बात खुद- है, ज्ञानवापी की बात है, ज्ञानवापी मंदिर है, मंदिर रहेगा, हम कोई उसको छू नहीं सकता। वैसे बोलेगा तो प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल, बोलेंगे तो प्रॉब्लम कोई नहीं है प्रॉब्लम- ना। जैसे देखिए, आप कह रहे हो ऐसा कि आप- दोगलापना है आप हिंदुवादी नेताओं का कि वैसे बोलेगा तो प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप जो वैसे अरे भाई भी हमारा बोले मंदिर दीजिए, है, बोले दीजिए, हम बोले- मंदिर नहीं बोलेंगे तो क्या एक बोलेंगे? मिनट बोले आपका दीजिए मस्जिद ना। नहीं है, साहिब आप जी, कभी जगदीश नहीं जी, बोलते मस्जिद। आप- अरे भाई आपके मस्जिद सुनने के लिए में शिवलिंग तैयार कैसे नहीं हो होगा? रही आपके मस्जिद में कैसे घंटी मिलेगी? आपके मस्जिद होती तो वहाँ सांप का मूर्ति लीजिए, कैसे आप बोल मिलेगी? लीजिए, बोल 5 लीजिए। देवी देवता की मूर्ति कैसे मिले? क्या मस्जिद तो मिलता है? कभी नहीं मिलेगा। तो मस्जिद बोलूं? कैसे हुई? वो मंदिर मैं है। बोलूं? हाँ बोलिए। ठीक है, जो महाशय ने जो कहा कि मैंने कहा
ये बता रहे कि सालने का मंदिर तोड़ कर लेंगे। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप इस डिबेट को पूरा देखिए। कहीं पर अगर मैंने मंदिर को तोड़ने का कहा है तो आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर मैंने नहीं कहा तो आपके ये हिंदू नेता झूठे हैं। अगर आपको उकसा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मंदिर हम वापस ले लेंगे तो कैसे वापस ले लेंगे? क्या धर्मांतरण करेंगे? क्या कहा? प्यार कैसे से मंदिर होगा, होगा? कभी प्यार? मोहब्बत अरे वाह, से होगा, 1800 प्यार से वर्षों से हम होगा, देख रहे, 1400 वर्ष प्यार से देख रहे, होगा, मंदिर से तोड़ के होगा। मस्जिद बनाया आपकी गया तरह तो गुंडाई प्यार करके, कहाँ गया? वो मस्जिद प्यार है तोड़कर तुम्हारा? गुंडाई वो करके प्यार है करेंगे तुम्हारा? मुसलमान कभी मंदिर कुछ। तोड़ के मस्जिद बनाने का प्यार है क्या? कैसे वापस ले लोगे? अच्छा आप सुनिए, बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर तोड़ा गया, उसका कोई प्रूफ नहीं है। आप सभी हिंदू नेताओं ने झूठ बोला, नेताओं ने, जो हिंदू संगठनों के नेता उन्होंने भी झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे कोई प्रूफ नहीं है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। ये पहला झूठ आपका। दूसरा झूठ आप बोल रहे हैं कि मैंने ये कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं अब भी ये बात बोल रहा हूं कि मैं, अरे तो अपना साहिल भाई सुनिए, आपसे मैं भी ये पूछ मेरा रहा हूं कि belief आप है। मंदिर कैसे वापस मेरे ले लोगे? belief को आप कोई नहीं जादू बोल है आपके सकते। पास? मेरे- करोड़ों का बना हुआ माल तो हमारे पास आ जाएगा, कैसे मंदिर आ जाएगा ये तो बताओ। ठीक है, कौन सी बिल्कुल। तरीके से आ जाएगा? आप खुद क्या मोहब्बत आप से धर्मांतरण बता रहे हो ना, करोगे? सुनिए ना। क्या आप हाँ, हिंदू बन सुनिए। रहे हो कि हम उससे जाके पूजा अरे पाठ करेंगे सुनिए ना, मैं तो आपको आपका बोल हो रहा हूं। जाएगा? हाँ सुनिए, सीधी बात है। सुनिए, एक दिन आप खुद इस बात को मानेंगे कि हम सबका पालनहार एक है। हाँ ये बात तो सही बस है। वो बात जब हो जाएगी ना, जब लेकिन झगड़ा उस खत्म हो एक जाएगा ना, को तो देखो सारा साहिल झगड़ा खत्म हो भाई, जाएगा। लड़ाई यही है। वो एक कौन है? अल्लाह। नहीं, आप मैंने राम को नहीं मैं मानते हो? पालनहार कहता हूं, साहिल मैंने जी, अल्लाह नहीं कहा। नहीं नहीं नहीं, साहिल यही जी, लड़ाई है। मैंने कहा साहिल जी, आप अल्लाह के साहिल सिवा बात जी, नहीं करते हो। नहीं, अभी आप साहिल अभी जी, सभी अल्लाह धर्म तो नहीं को कहा ना। हम मैंने तो ये नहीं कहा कि साहिल अल्लाह जी, को मानिए। अरे बोलिए साहिल ना, जी, कुरान हम में कहिए अमन भगवान राम भी अमन है, અને શાંતિની बोलिए વાત आप થઈ कहिए છે। भगवान राम हम भी है, सबका बुद्ध भी है, पालनहार। ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी बिल्कुल, है, नहीं भगवान मान्यता राम, देंगे। आप भगवान राम की बात करें चाहे आप मनु भगवान की बात करें, मनु भगवान को हम हमारे नूह अलैहिस्सलाम मानते हैं, हमारा पैगंबर, हमारे पैगंबर, हमारे मैसेंजर मानते हैं हम। हो सकता है हमारे जो भगवान राम है वो भी हमारे मैसेंजर रहे हो। मैं कहां मना कर रहा हूं इस बात से? बिल्कुल सही मैं बात साफ है। कहता हूं कि झगड़ा यही है जो मेरे हिंदू भाइयों को बहकाया गया है। मुसलमानों की यह कमी है कि मुसलमानों ने कहा कि कुरान इस्लाम की किताब है, मुसलमान की किताब है। नहीं, कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, कुरान इंसानियत की किताब है। उस किताब को आप पढ़िए सही तरीके से। मैं कहूंगा अपने सारे हिंदू भाई पढ़े उस चीज को, हर इंसान उस किताब को पढ़े, मजहबी किताब समझ के ना पढ़े, इंसानियत की किताब समझ के साहिल पढ़े। जी, आप ऐसे साहिल हिंदू जी, नेताओं कुरान में अमन के की और बात ये થઈ जो છે। खारीले नेता होते हैं, जहर साहिल फैलाने जी, वाले नेता होते हैं, साहिल उनके जी। चुंगल से आप बाहर आ जाएंगे जब आप पढ़ लेंगे सही। સાહેલજી, કુરાનમાં અમનની વાત થઈ છે, અમનની વાત થઈ છે કુરાનમાં। સાહેલજી, जी કુરાનમાં અમનની વાત થઈ છે, बिल्कुल अमन की बात है कुरान में। ગીતામાં શાંતિની વાત થઈ છે। જગદીશજી, बिल्कुल। કુરાન અને ગીતામાં देखिए સેમ एक चीज को आप વસ્તુની लेके વાત वो થઈ ना છે। करें, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जी। भाई। आप कह रहे हैं कि गीता हिंदुओं का किताब है ना, ठीक है, मैं भी मानता हूँ गीता हिंदुओं की किताब है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कुरान मुसलमानों का किताब है। मैं मानता हूँ कुरान पूरी इंसानियत का किताब है। तो इसमें कौन सी गलती मैंने बात कर दी? लेकिन आपने सही यही गलती इनका बात है कि मैडम अगर जिस दिन ये सभी धर्मों को मान्यता दे देंगे, ठीक है, आपका भी धर्म बराबर है, आपका भी बराबर है, आप अपने धर्म पे रहिए। इनके जब भी अजान होता है, अजान का अर्थ होता है अल्लाह के सिवाय कोई नहीं। वही प्रश्न खड़ा होता है, क्यों भाई? अल्लाह को हम भी मानते हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं। उनको अजान उन्होंने में जो ये रास्ते नहीं कहा बताए- कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अरे आप पढ़िए, में अजान नहीं कहा। अजान में क्या कहते हैं? अरे आप? अल्लाह क्या अकबर कहा कहते जाता है, हैं? अल्लाह उसका अर्थ बड़ा क्या है हुआ कहा हिंदी? जाता है, कोई नहीं, ये नहीं अरे कहा भाई अजान यही में। है ना, इसीलिए अगर कहता हूं इनसे पढ़िए कहा आप जाए, पहले, इनसे पहले कहा खुद जाए इस्लाम कि- को पढ़िए, उसके बाद अरे मेरे हिंदू पढ़ने भाइयों के को बाद- बताइए आप। अरे भाई पहले पढ़ने आप के पढ़िए, बाद उसके बाद आतंकवाद बात करिए। पैदा हुआ है। સાહેલજી, वरना कोई હું मेरा જય हिंदू શ્રી भाई રામ અને कुरान पढ़ અલ્લાહુ कर आकर અકબર आपसे એક सवाल સાથે કહીશ। सुनिए, साहिल સાહેલજી, कुरैशी को छोड़ હું दीजिए જય आप। શ્રી રામ અને कोई અલ્લાહુ हिंदू અકબર भाई એક कुरान સાથે पढ़ कर कहीश। आकर आपसे जगदीश भाई सवाल करेगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे आप। સાહેલજી, સાહેલજી, હું જય શ્રી રામ ને અલ્લાહુ અકબર એક સાથે કહીશ। तो आप કોનાથી बोलिए, મને मैं क्या ખતરો मना છે? कर रहा हूं? आप बोलिए, કોનાથી आपका મને belief है, ખતરો છે? आपका बिलीफ है, आप बोलिए। मैं जिसको मानता हूं मैं મુસ્લિમને बोलूंगा। કોનાથી ખતરો છે? कभी ओवैसी ने कभी नहीं कहा कि मुसलमान खतरे में है। ये तो आपके त्रोगड़िया साहब और ये हिंदू संगठन सारे ये हिंदू संसद बुला बुला कर बोलते हैं हिंदू खतरे मुस्लिम में, पण मुसलमानों हमारा का कत्लेआम भाइयों छे, करेंगे। ए किसी भाइयों हिंदू ने पण एटलो ज किसी अधिकार मुसलमान ने भारतमां कहा, छे। क्या किसी मुसलमान ने कहा कि हिंदू का कत्लेआम अरे करेंगे? भाई किसी ने क्यों नहीं नहीं? कहा। हिंदू ओवैसी ने संस्थाओं एक में ही वहां बार पर बोला बना ना बना के कहा कि जा रहा है। एक बार 15 मिनट के लिए यहाँ पुलिस हटा दो। ये नहीं कहा ये कि हिंदू ओवैसी ने कहा कत्लेआम कि नहीं? करेंगे। क्या ये- करेंगे?
कौन से ओवैसी पुलिस ने कहा? हटाने चलिए का आपका क्या नॉलेज करना आप देख चाहते हो? लेते हैं, कौन आपका से नॉलेज चाहे- देख लेते हैं। हाँ। कौन से ओवैसी ने कहा बताइए? ओवैसी दिन ओवैसी, कौन सा ओवैसी ने? अरे हैदराबाद के जो नहीं, आपके कौन हैं, से क्या नाम बताइए? असुद्दीन ओवैसी। है ना, आपका नॉलेज बहुत कम है, ये मैं सब दर्शक देख रहे हैं। तो कौन और सा? बिना वजह नॉलेज के बिना नहीं बोलना तो चाहिए। क्या नाम है उनका? असदुद्दीन ओवैसी का एक भी बयान उठाकर आप बताइए जिसमें उन्होंने कुछ चीजें कही। अरे आप देखिए ना, बोले नहीं, हैं ना आप भाई। सुनिए। अरे आपको सुनाया असदुद्दीन जाए यार। ओवैसी का बयान अरे आप- नहीं है। तो किसका है? अरे अब आप पता करिए, अरे उनका उन्हीं का नहीं, मैं बयान है आपको भाई बोलता हूं। साहब। शर्त लगाइए, चलिए डिबेट करेंगे इस पर भी। चलो, ओवैसी का बयान अरे अगर ये डिबेट हुआ तो आप हमेशा तैयार क्या कर बात लीजिएगा। करते हैं आप? 15 उन्होंने कहा मिनट पुलिस 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे। आपको नहीं है और उनको knowledge। पता नहीं है कि एक बार पुलिस हटी थी, असदुद्दीन ओवैसी क्या ने हुआ नहीं था? कहा है ये। तो किसने कहा ये है? उनके भाई का बयान था, और उसमें भी कोर्ट जो भी चीजें हुई वो बाइज्जत बरी हुए उस मामले अरे वो में। दूसरे इसीलिए मामले कहता में हूं, हुए हैं, इस मामले knowledge में लेकर नहीं। debate अरे भाई ना इस करिए। मामले में नहीं है, सिर्फ भोले इस भाले मामले हिंदू में नहीं भाइयों को है, उकसाने के लिए इस debate मामले ना में आइए नहीं आप। है। वो दूसरे मामले में बरी हुए हैं, सिर्फ उनके ऊपर हिंद- 8 केस चल रहा है। अरे तो एक में भी बरी हुई knowledge है, ले लीजिए आप, 8 हिंदू केस भाइयों को चल रहे हैं। उकसाने अभी में मत एक आइए केस में बरी हुए, Knowledge 7 केस लेकर में आया बाकी करिए है, debate में। 7 झूठ केस मत बाकी है फैलाइए। उनका, उसको आप बरी झूठ होना फैला बाकी रहे है। हैं चैनल झूठ पर तो आप लोग बैठकर। फैलाने की फैक्ट्री आप बना मेरे रखे हो। हिंदू भाइयों आप को लोग उकसा बहकाओ, रहे हैं। लेकिन गलत कोई बहकाने जानकारियां दे आएगा रहे हैं, नहीं। ये जगदीश आप भाई लोग गलत के जानकारियां दे बहकावे रहे के हैं कोई हिंदू आने भाइयों को। वाला इन्हें नहीं खुद है। को नॉलेज नहीं बराबर, है। एक ये अजान की बात करते हैं कि अभी- अजान में ये है, अजान का मतलब ही इन्हें नहीं पता, और वो हिंदू भाइयों को उकसा रहे हैं। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इसी से बर्बाद हो रही है। मेरा देश का युवा, अरे मेरा भाई देश आप का हिंदू बता दीजिए मुसलमान ना, दोनों आप इसी ही में बता बर्बाद दो हो क्या रहे अर्थ हैं। होता है, जरा आप जाहिर बता दो। क्या आप ही बता दो ना क्या है? अल्लाह अकबर उसमें कहा गया है कि अल्लाह बड़ा है, कहा गया है। बराबर। उसमें ये नहीं कहा कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अरे यही ये आगे अजान बढ़ो नहीं ना, कहा। आगे आएगा। और आगे भी उसके सुनिए, सिवा कोई नहीं है। आगे भी सुनिए, अजान उसके में यही अंदर। होता है कि अरे भाई उसमें- उनके सिवा अरे कोई है सुनिए, ही नहीं। उसमें ये बराबर। कहा जाता है आइए कामयाबी की तरफ, नमाज पढ़िए, कामयाबी की तरफ आइए, ये कहा गया उसके अंदर। नहीं भाई साहब, उसके अंदर ये नहीं आप कहा गया कि बहकाओ, काफिर और बहकाने हिंदू से चीजें नहीं कही है। कोई बहकेगा नहीं। अरे मैं उसके यही अर्थ को कहता आप हूं। गूगल करके देख लीजिए। अच्छा अभी मैं सुनिए, कर दूं, एक मिनट अभी चुप कर रहिए, दूं, एक गूगल मिनट बता चुप देगा। रहिए। आप तो गूगल को भी गलत बता एक दोगे। मिनट इनको चुप आप करके गूगल को बोलता भी हूं। बता दोगे एक गलत मिनट है, का वक्त देंगे क्योंकि अभी। आप झूठे आदमी हो, ठीक है। झूठ का प्रचार कर ठीक रहे है, सुनिए हो। आप। इसी झूठ की वजह से आज पूरा विश्व में आतंक फैला हुआ है। अच्छा, एक पूरा विश्व एक दुखी है। मिनट का वक्त दीजिए आप। बोलिए। अब आपने जो कहा कि कैसे आप मंदिर लेंगे, कैसे मस्जिद बना देंगे आप, है ना, आपने जो कहा कि झूठ का प्रचार, मैं ये बात बार बार कहता हूं कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है जब मोदी जी और ऐसे बयान देते हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, और ये तमाम चीजें होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप जाइए बर्तानिया, जाइए ब्रिटेन, यूके, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, आप सब जगह जाइए, वहां कोई तलवार नहीं चल रही है, लेकिन लाखों लोग वहां पर आज भी मुसलमान हो रहे हैं ना। But साहिल कैसे? जी- सुनिए सुनिए, बोले दीजिए। धर्म परिवर्तन हो रहा है। लेट मी धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है? अरे જગદીશજી આજ પ્રમાણે સમય વ્યતીત થશે જગદીશજી આજ પ્રમાણે સમય વ્યતીત अब થશે इनको बताओ, Let him फ्रांस की बात complete. करो। समय ये व्यतीत इतने થશે कट्टर હું लोग આવું છું हैं। આપની પાસે मेरे देश જગદીશજી का હું આવું છું हिंदू આપની પાસે ऐसे कट्टर नेताओं की वजह से मेरे देश का हिंदू विचार युवा करिए, एक कुरान कक्षा को 8 में खुद पढ़ा पढ़ेगा, पढ़ने वाला क्या व्यक्ति स्थिति होगी उसको? एक टीचर की क्या हत्या आखिर गला काट कुरान में देता ऐसा है। क्या साहिल लिखा है? कमलेश तिवारी का साहिल गला जी, कट जाता है पढ़ेगा, सूरत से जाके। शिवलिंग मड़ियों, ये लोग पढ़ाई क्या स्वान है? मड़ियों, इन लोग की ये शिक्षा नंदी बताती मड़िया, है कि अब आप लोग अद्दा क्या पूरा शिक्षा वक्त दे रहे खोटा हो, से। अपने मदरसों में क्या पढ़ा रहे हो, कुरान में क्या पढ़ा रहे हो आप लोग, कि यहाँ से सूरत से गया हुआ व्यक्ति कमलेश तिवारी का गला काट डालता है, फ्रांस का एक शिक्षक का गला कट जाता है, अभी धंधुका में गला काट दिया गया। क्या साहिल है? जी, तबरेज नजर साहिल नहीं आ जी, रहा। साहिल फिर जी, उनको मार दिया क्यों गया, पर? गोश्त लेकर बिल्कुल साहिल नहीं, जी, वो तो अलग-अलग केसों में पकड़ा गया है। जगदीश जी, अलग-अलग केसों में पकड़ा गया है। दाढ़ी टोपी જગદીશજી મારી જોડે સમયની મર્યાદા છે સાહિલજી મારી જોડે સમયની મર્યાદા છે સાહિલજી अरे भाई ये कथनी करने में दोनों में अंतर है। अरे जब आप भी 3.5 कथनी करने में अंतर है। 1.5 लाख कश्मीरियों को मार आप के लोग निकाल खड़े दिया होकर गया, बोलते हो तब धर्म कहाँ संसद कर के दिया? अंदर, तब कोई बोलता धर्म था। संसद में बोलते तब हो, कोई સાહિલજી बोलता नहीं। तब સાહિલજી किसी ने સાહિલજી उन्हें તમે बात જ્યારે किया। નરેન્દ્ર મોદીને किसी ने કટ્ટર विरोध કહી नहीं રહ્યા किया છો તો कि भाई અસુદ્દીન ये ઓવૈસી गलत हो કટ્ટર रहा है। નથી जी क्या તમે જ્યારે નરેન્દ્ર મોદીને કટ્ટર કહી રહ્યા છો તો અસુદ્દીન ઓવૈસી કટ્ટર નથી ओवैसी का एक भी बयान ऐसा बता दीजिए। चलिए, अरे रोज आज बयान कहीं- आते हैं। कौन सा बयान? आज इनको नहीं कहीं- दिखेगा। कौन सा मस्जिद बयान? है, बर्दाश्त मस्जिद हो गए, रहेगी, आगे कहाँ बत्ती मत बांध डालो। लिए। हाँ बोलिए, इनको कौन सा? नहीं दिखेगा। अरे सुनिए, हाँ बोलिए, कौन सा बयान की आप बात करिए मैडम? મસ્જિદ है और मस्जिद रहेगा तो क्या इसमें गलत क्या कहा? मैं भी तो बोल रहा हूँ ये बात। તો નરેન્દ્ર મોદી હિન્દુ રાષ્ટ્રવાદ કહે છે એમાં ખોટું શું છે तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि आपको ओवैसी से क्यों परेशानी हो रही है। मोदी क्या सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री है? सबके हैं। पूरे देश के पूरे हैं पूरे देश के हैं। पूरे अरे देश वो के हैं। मोदी जी तो हमेशा बात तो की क्यों है, मस्जिद की बात क्यों नहीं सबका करते साथ फिर वो? सबका विश्वास। પણ सबको શિવલિંગ साथ મળ્યું देने की बात करते શિવલિંગ हैं। મળ્યું इस સ્વાલ देश મળ્યો का નંદી મળ્યું એ બધી વસ્તુ ખોટી પુરાવા ખોટા बराबरी
गरीब का अधिकार ही देश का संविधान देता है, लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नहीं सिर्फ हिंदू को बराबरी का देखिए, अधिकार मिलेगा, इस देश में मुसलमानों को नहीं यही मिलेगा। तकलीफ है, ऐसे मैडम। कैसे चल सकता है? સાહેજી રથયાત્રામાં આજે પણ મુસ્લિમ બિરાદરો ચાંદીનો રથ આપવા જાય છે જગન્નાથ મંદિરે. આજ રથયાત્રામાં જે મુસ્લિમ બિરાદરો છે તે છાશનું વિતરણ કરે છે. રમઝાન ઈદ જ્યારે નીકળે છે ત્યારે આજ હિન્દુ ભાઈઓ ખડા પગે ઉભા રહીને પાણી
પાણી આપે છે. बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए. आप तो सोचिए अमन फिर आप અને हिंदू, फिर आप शांति मुसलमानों फैलाए को तो वांधो आतंकवादी શું कैसे છે? कहते हैं? जब मुसलमान इतनी मोहब्बत से आपको छाछ पिला रहा है, आइसक्रीम खिला रहा है, दही खिला रहा है, चांदी का रथ दे रहा है, आप फिर भी मुसलमानों को गलत कहते हैं कि सभी मुसलमान गलत है भाई? मुसलमान રમઝાન ઈદમાં आतंकवादी સેમ नहीं વસ્તુ है। હિન્દુ ભાઈઓ પણ કરે છે. अरे मेरे घर पर मेरे हिंदू भाई खुद मुझे फोन करके कहते हैं बकरी ईद पर भाई प्लीज हमें थोड़ा मटन खिलाना. मेरे हिंदू भाई हैं ऐसे. लेकिन बदनाम होगा मुसलमान के मांस खाता है, मार बात दो कहाँ मुसलमान आती को. ये है? क्या बात होती है बात भाई? यही होती है। આપણે જે વાત કરી રહ્યા છે એ શાંતિની વાત કરી રહ્યા છે, કારણ કે આપના પણ ફોલોવર છે, જગદીશજી આપના પણ ફોલોવર છે. આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે ભારત દેશ અને ગુજરાતમાં અશાંતિ ફેલાય. ના બિલકુલ નહીં, શાંતિથી બધા રહે. અશાંતિ જ્યારે ફેલાય लेकिन ये છે सरकार चाहती है शांति फैलाए, इसीलिए 1991 के कानून को ताक पर रख दिया गया और ये तमाम ज्ञानवापी की चीजें लेकर आ गए. कौन लेकर आया ज्ञानवापी की चीज? 1991 के पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को किसने ताक पर रख दिया? क्या जरूरत थी ज्ञानवापी તો સાહેબજી અયોધ્યા માટે ખુલ્લા દિલે મસ્જિદ માટે જગ્યા બી તો આપી છે ને. की खेती कर दी. देखिए, સાહેબજી जहाँ भी અયોધ્યામાં ખુલ્લા तुष्टिकरण દિલે होगा, મસ્જિદ માટે જગ્યા પણ આપી છે ને. जहाँ भी तुष्टिकरण होगा, અયોધ્યામાં ખુલ્લા દિલે મસ્જિદ માટે જગ્યા પણ આપી છે ને. यानी वही तो बात है ना कि आपकी सत्ता है, आप कहीं पर भी कुछ भी तोड़ दो और आप जगा दे दो, बोला हाँ बना लो भाई, क्योंकि सरकार हिंदुओं की है इसलिए मुसलमानों के साथ પુરાવા જોવામાં આવે છે સાહેબજી, પુરાવા જોવામાં આવે છે. ठीक है. चलिए ये बात आ गई ना, तो इसका मतलब आप चाहती है कि कोर्ट को माना जाना चाहिए, जी को माना- बिल्कुल, जी कानून को माना- बिल्कुल. सुनिए, कानून को माना जाना चाहिए ना. જી तो 1991 का कानून था कि बाबरी मस्जिद के अलावा बाकी हर चीज पर वो कानून लागू होगा. क्यों नहीं माना जा रहा है इस देखिए कानून को? 1991 जिन लोगों ने ये कानून लाया था, ये तुष्टिकरण की नीति है। ये बहुत अच्छे। तुष्टिकरण कैसे? उनको पता नहीं था 1958 में भी ये कानून बना आपको हुआ है। पहले से ASI। सब पता જગદીશજી है। अरे જગદીશજી आपको देख મારી लो, પાસે गूगल સમય कर નહીં लो, મર્યાદા છે मैं आपको સાહેબજી, મારી WhatsApp कर પાસે दूंगा। સમય નહીં મર્યાદા છે. 30 સેકન્ડ આપણી પાસે છે. 30 સેકન્ડ જગદીશજી, 30 સેકન્ડ. જગદીશજી 1958 में भी ये नियम बना हुआ है। 30 जितनी सेकंड। भी पुरानी मंदिरें हैं 100 साल अगर हो गई तो वो ASI के कब्जे में आएगा। इसको अरे ध्यान आप में रखा। सही से साहब जी, 30 सेकंड बना दिए। उसके अरे आगे आप की लाइन भरिए, भी बताइए ना। ASI होता उसके आगे की 1958 में लाइन भी पास हुआ। बताइए, आप अरे क्या आप बात बता कर दे रहे हैं? भाई। જગદીશજી સાહેબજી, આપણને ખૂબ ખૂબ आप ધન્યવાદ गलत કહેવું પડે. कहोगे, ઘણા आप દર્શક गलत મિત્રોને कहोगे। માહિતી આપી. સવાલ આવીને એ ઉભો રહે છે કે કાશી એ મોક્ષ માટેનું છે, પરંતુ આમ છતાં પણ કાશીમાં વિવાદ થયો. જ્ઞાનવ્યાપી વિવાદ એટલો વકર્યો કે હિન્દુ પક્ષકારો અને મુસ્લિમ પક્ષકારો આમને સામને આવી ગયા. વિવાદ થયો જેમાં રાજકારણ પણ ગરમાઈ ગયું. બધાની નિગાહ હવે એની ઉપર છે કે કોર્ટ દ્વારા શું ચુકાદો આપવામાં આવે છે, પરંતુ મારું ગુજરાત મારું ભારતમાં શાંતિ બની રહે તેની દરેક વ્યક્તિ અપીલ કરી રહ્યા છે. બુલેટિન ઇન્ડિયાના મારફતે હું પણ અપીલ કરી રહી છું કે ગુજરાત અને ભારતમાં શાંતિ હોવી જોઈએ, શાંતિ રહેશે, કારણ કે આ ભારત દેશ હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ ચારેયનો છે કે જ્યાં બધા જ લોકો પ્રેમથી એક બંધુભાવ સાથે રહેતા હોય છે. જ્ઞાનવ્યાપી વિવાદમાં અત્યારે બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું આજ સમયે આ ચેનલ પર. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. બુલેટિન ઇન્ડિયા, ભરોસો ગુજરાતનો.